Good morning, 11th standard, and today we are going to discuss about the last topic of chapter 4, that is hydrogen bonding. ठीक है बेटा? So in this chapter we have discussed about the Lewis octet theory, then we have done वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके बाद हमने डिस्कस किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर हमने डिस्कस की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. यस, एंड विद दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द हिब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस, एंड द लास्ट टुडे वी आर गोइंग टू cover up the last topic of our chapter, and that is one more type of a bonding, and which is known as the hydrogen bonding. The first one thing that why there is need to study about this bonding. So when we are study about the ionic and covalent bonding, so better this also comes under the category of a covalent bonding, and we should know about that in certain molecules which is existing in the gaseous form, which is existing in the solid form. Basically there the hydrogen bonding also plays a vital role, and so it becomes very important that we should have an idea of hydrogen bonding. तो आज हम करने जा रहे हैं hydrogen bonding. As all of you know that the elements, or we can say the atoms of the elements, which are the first one element of each and every group, means P block elements group. These are smaller in size as well as highly electronegative. जैसे कि आपका ग्रुप नंबर 15 है नाइट्रोजन, ग्रुप नंबर 16 है ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ग्रुप नंबर 17 है फ्लोरीन. So oxygen, nitrogen, fluorine, all these are the highly electronegative elements, because as we move down in the group, the electronegativity that goes on decreasing. ठीक है, so when such type of a high electronegative element comes in the contact of the hydrogen, and then they form a hydrogen bonding. तो चलिए पढ़ते हैं कि होता क्या है. So whenever we can say that a highly electronegative element which is small in size attached to a hydrogen atom to form covalent bond, then होता क्या है that the covalent bond of electrons, they are shifted toward the more electronegative atoms and form a partial positively charged on hydrogen atom and negatively charged on a partial negative charge on highly electronegative atom, and such type of a bond is known as hydrogen bond. So just have a look here. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हाइड्रोजन फ्लोराइड बन रहा है या अमोनिया बन रहा है आपका, ठीक है, या फिर वाटर बन रहा है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बना रहा है, आपका HF बना रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है. सो इन दैट वन केस व्हाट हैपन्स बेसिकली कि हाइड्रोजन जो होगा बेटा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले लेगा कोवलेंट बॉन्ड में ही, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होगा दैट गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ठीक है, due to which this there is a small force of electrostatic attractive force occurs in between these two species, which is known as a hydrogen bond. ठीक है, this we can say bond is basically weaker than the covalent bond. याद रखना है ये वाला बॉन्ड जो होगा वो कोवलेंट बॉन्ड से, बेटा जो सॉलिड लाइन से दिखाया गया है वो कोवलेंट बॉन्ड है, और जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड. ये ध्यान रखिएगा पहली चीज. ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि HF मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के
नियर बाय आता है तो अपने ऊपर क्या ले लेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन को क्या दे देगा, डेल्टा नेगेटिव। तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। सो दिस बॉन्ड बेसिकली इज अ ब्रिज इन बिटवीन टू एटम्स विच वो होल्ड वन एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड, ये एक एटम कोवलेंट बॉन्ड से है, एंड द अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देखो ये HF का फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, और फ्लोरीन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, दैट इज कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, और अटैच्ड विद ईच अदर। सो मैंने जैसे बताया हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा डॉटेड से दिखाया जाता है, डॉटेड लाइन से, और कोवलेंट बॉन्ड सॉलिड लाइन से। सो वी कैन डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द attractive force which binds hydrogen atoms of one molecule with electronegative atom like fluorine, oxygen or nitrogen of another molecule. अब आ जाता है कि ये बनता क्यों है, कॉज ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो बेटा सीधी सी बात है कि व्हेन हाइड्रोजन जो है दैट इज बॉन्डेड, एक हाइड्रोजन जब किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि X हम मान लेते हैं, उसके नियर बाय आता है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर इस HX के बीच का था, वो ये थोड़ा सा कहाँ को शिफ्ट हो जाता है, X की तरफ। द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड विच इज शेयर्ड इन बिटवीन टू एटम्स दैट मूव्स फार अवे फ्रॉम हाइड्रोजन एटम एंड शिफ्टेड टूवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इसकी तरफ क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, इससे दूर चला जाएगा, हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा और इसकी तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो क्या बन गया, उस पर आ गया फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, और वो बन गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या हम कहें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो X था जिस पर कि कोई अभी कोवलेंट बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड पूरा का पूरा इस X की तरफ शिफ्ट करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, इस पर पार्शियल या फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपकी पोलैरिटी आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आ गए, माने स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड दैट पोलैरिटी इज नथिंग बट दैट पोलैरिटी अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा विच इज हैविंग अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इज द another representation of a what hydrogen bond in between HX, in between HX, जिसमें कि HX क्या बन गए हैं, आप सारे आपके पोलर मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड, मीन्स इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, वेयर एज इट इज मिनिमम इन गैसियस स्टेट। सो वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो होता है दैट इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द। अब बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन, ध्यान से याद रखना, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के सेम या डिफरेंट कंपाउंड्स में। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड, ध्यान से सुनो, इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। जैसे बहुत सारे HF आ जाए, या ROH और वाटर, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इनके बीच में अगर इसके ऑक्सीजन और इनके बीच में हो रही है, हाइड्रोजन के बीच में, या इसके और इसके फ्लोरीन और इसके H और इसके फ्लोरीन के बीच में हो रही है, तो कौन से बॉन्ड्स बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। या फिर बहुत सारे ROH आपस में आ जाए और एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या आपका ऑक्सीजन अगर बॉन्डिंग दिखा रहा है, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखो बच्चे, ये होगी आपकी ये
बॉन्डिंग आर के साथ नहीं होगी, दैट इज शोइंग विद द OHR। ठीक है, तो ROH के मॉलिक्यूल्स के और वाटर के साथ हो जाएगी। फाइन, ये तो बेटा जैसे हम बात कर रहे थे कि ROH के बीच में होगा, कैसे होगा ये देखो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है इथानॉल, तो इथानॉल में जो इथानॉल का फॉर्मूला होता है, इथानॉल इज एन अल्कोहल, CH3CH2OH, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है इथानॉल का, CH3CH2OH। अब एक का हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, दो मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और एटम की स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो जब दो मॉलिक्यूल के एक का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में बॉन्डिंग करते हैं, जैसे कि HF में थी, वाटर के अंदर होती है, उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जबकि अगर एक ही मॉलिक्यूल के, सेम मॉलिक्यूल के, व्हेन, याद रखना हाइड्रोजन एटम, पहली कंडीशन हाइड्रोजन एटम क्या हो, दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या स्पीसीज के बीच में प्रेजेंट हो, और कहाँ प्रेजेंट हो, सेम मॉलिक्यूल के अंदर, देन सच अ बॉन्डिंग इज नोन एज अ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लो, अब एक बेंजीन की एक ग्रुप पे लगा, एक कार्बन पे लगा है नाइट्रो ग्रुप और दूसरे कार्बन पे लगा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप। ठीक है, क्या लगा है, OH ग्रुप। जब इस एक कार्बन के हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो उसे हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, सो दीज आर द about your types of hydrogen bonding. Now you have to do these questions of your NCERT. ये देखो क्वेश्चन नंबर 4.25 बैक एक्सरसाइज के हैं, तो ये हो गया 4.28, 4.30, 4.31, 4.37, 4.38, 39 एंड 40। ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी बैक एक्सरसाइज के भी करने हैं, apart from your hydrogen bonding. So just go through that and do all the questions if you haven't done, except this in your chemistry practice. Fine. So do all the questions given in your NCERT back exercise. Thank you.